Hello everyone, my name is Kashish and I have scored 687 marks out of 720 in my second attempt in NEET 2024. My first attempt was obviously in 2023 in which I scored 461 marks out of 720. So in today's video we are going to discuss about that how can we actually revise the whole syllabus in the last 20 days or 17-18 days. Today I will tell you one thing that वेन एवर जिस भी अटेम्प्ट में आपको ऐसा लग जाए ना कि इस बार मैं लास्ट के 20 दिन में रिवाइज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, समझ जाना कि उस अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो ही जाएगा. अब ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह पा रही हूँ, बिकॉज मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए. एक अटेम्प्ट जिसमें मेरा नहीं हुआ था, दूसरा जिसमें मेरा हुआ है ना. सो जिस अटेम्प्ट में नहीं हुआ था उस अटेम्प्ट में मेरे में वो कैपेसिटी, वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पूरा रिवाइज कर सकती हूँ. बट जिस अटेम्प्ट में मेरा हुआ, दैट मीन्स this year I was able to revise my whole syllabus, like not with short notes, the entire thing in the last 18 days. There are different categories of the students. Some students, they just solve questions in the last few days, the questions that they're already done. There are other category who just keep giving full syllabus mock test. There's other category who do short notes. Today we are going to discuss about the fourth category which I followed, and I think that is the strategy which you can follow in order to revise each and every point. Because most of the students, they tend to revise the important points in the last 20 days. But it's a NEET exam. It's not important that the paper will come just from the important points only. It can come from unimportant points as well. Strategy, the way is not very difficult. We'll start with biology and then we'll discuss the whole thing. For biology, you have to do this book and this book, just these 2 books. कुछ लोगों को ये भी ज़्यादा लग रही होंगी, but let me tell you one thing, that you are doing more than this and not this because of the FOMO that you are having. So just do these 2 things. These 2 books are enough for you to score full score, like 360 on 360. I did one mistake. I scored 355. I did one question wrong, which was a diagram based question, and I will actually show you that question. That question was from sexual reproduction in flowering plant. So this was the diagram which came in the exam. This the diagram given on page number 37 of NCERT. I hope you can see this. This was the diagram which I did wrong. So this they had asked that identify the part of the seed which is destined to form the root when the seed germinate. So ideally we consider that कि जो सी के बिल्कुल नीचे जो ये है, ये वाला जो पोर्शन है सी के बिल्कुल नीचे, वो हमें लगता है कि वो रेडिकल है और उसके नीचे वाला कोलियोराइज है जो उस रेडिकल को कवर कर रहा है. सो वो सोच के मेरे को लगा कि उसके बीच का जो पोर्शन है सी वाला वो कॉटिलिडन होगा, तो आई मार्क्ड डी which was actually coleorhiza, and this diagram is actually given in NCERT. So कहीं ना कहीं मैं diagram based question एक में लैग करी थी, उसकी वजह से मेरा ये गलत हुआ था. ये NCERT के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में दे रखा है, वहाँ पे चेक कर सकते हो. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें डायग्राम्स भी अच्छे से देखनी है. सो लास्ट के 20 डेज में what I did was कि मॉर्निंग का पोर्शन, लाइक आई यूज्ड टू वेक अप बाय 7 और 8 AM. कुछ दिन लेट भी होता था, बट लाइक रात को लेट सो रहे हैं एंड सुबह 9, 10, 11 बजे उठ रहे हैं. सो इट्स ओके, वट एवर सूट्स यू. बट यू हैव टू डिवाइड योर डे इंटू 3 कंपार्टमेंट्स, जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना और बायोलॉजी को थोड़ा कम. बायोलॉजी के हमारे पास में वैसे 38 चैप्टर्स थे, अब कट गए हैं तो 32 रह गए हैं. तो 16 डेज थे, मैं 16 डेज मान के चली थी. मेरे पास में 20 डेज थे, मैंने 4 बोनस में डाल दिए थे दिन. तो रोज के 2 चैप्टर्स, जो चैप्टर्स बहुत बड़े थे, थोड़े मेरे को टफ लगते थे, लाइक एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, जो होगा एनिमल किंगडम, जो चैप्टर्स थोड़े लंबे थे, मुझे थोड़े टफ लगते थे, उनको मैंने एक्चुअली में डिवाइड कर लिया था कि आधा आधा टाइप्स, एंड उनके साथ में मैंने कोई और चैप्टर कर लिए थे. ये आपको डिसाइड करना है. अब ये आपकी मर्जी है कि आपको पूरे 2 चैप्टर करने हैं या आधे आधे 4 चैप्टर करने हैं, बट आपको नेट मिला के 2 तो करने ही पड़ेंगे ना एक दिन में. ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना. लाइक यू आर हैविंग 16 डेज एंड यू हैव टू डू 32 चैप्टर्स. तो एक दिन में यू कैन डू ईदर 2 चैप्टर्स और यू कैन डू आधे आधे 4 चैप्टर्स,
राइट। सो मेरा मिक्स रहता था, लाइक जो डिफ़िकल्ट है उनको मैं आधा आधा डिवाइड कर लेती थी और उनके साथ में मैं कोई और फुल चैप्टर कर लिया। लाइक मुझे सेल साइकिल ईजी लगता था, सेल द यूनिट ईजी लगता था, है ना। ये चैप्टर्स जो मेरे को आते थे, मेरे टिप्स पे थे, है ना। जो हम शुरू में चैप्टर्स पढ़ते हैं वो हमारे टिप्स पे हो जाते हैं, बट जो चैप्टर्स मुझे टफ लगते थे उनको मैंने डिवाइड कर लिया था। जैसे एनिमल किंगडम मैंने 2 दिन पढ़ लिया, बट आज मैंने आधा एनिमल किंगडम पढ़ा, बट साथ में मैंने सेल द यूनिट और सेल साइकिल भी पढ़ लिया। अगले दिन आधा एनिमल किंगडम पढ़ा, बट उसके साथ में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पढ़ लिया। और अब लास्ट के दिन है, ओनली एनसीईआरटी फटाफट आपको पढ़नी है, बीच बीच में से नहीं, पूरी पढ़नी है। पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो दिल लगा के, एक बार 2 घंटे लगेंगे नेट पूरा करने में, 3 लगा लो, चलो 3 आवर्स फॉर बायोलॉजी डेडिकेटेड। और इन 2 बुक्स के अलावा कुछ भी नहीं करना है। और लास्ट के 20 डेज में बायो की अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अटेम्प्ट अ फ्यू मॉक टेस्ट कुछ इस तरह से दिए थे। मॉक टेस्ट मैंने खुद, ऑब्वियसली मेरा प्लान नहीं था, वो मेरे इंस्टीट्यूट वालों का प्लान था, मैंने उसको फॉलो किया था। एंड मैं आपको भी यही बोलूँगी, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं उनको प्लीज़ अच्छे से फॉलो करें, है ना। उन पे डाउट मत करें, उनको अच्छे से ट्रस्ट करें और उनके साथ चलें। तो मेरा टेस्ट वेडनेसडे और संडे को होता, तो लगभग मैंने 4 से 5 फुल मॉक टेस्ट दिए थे। आई गेस वो 5 मॉक टेस्ट आई गेव फुल। तो मैंने पहले ट्राई करा था मैं डेली मॉक टेस्ट दूंगी, बट वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था। सो आई गेव ओनली 4-5 मॉक टेस्ट एंड आई गेस इट्स इनफ। फुल मॉक टेस्ट, पार्ट टेस्ट तो दिए हुए थे ना पहले। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजी के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए हमारे पास में ये 4 बुक्स हैं जिनको हमें करना है। दो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आई डिडंट रीड दिस एनसीईआरटी, नॉट फॉर ऑल। तो इसका मैं आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस आई विल गिव यू इन डिफरेंट वीडियो, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। बट ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है। और ये एनसीईआरटी आपको लास्ट के 20 डेज में भी पढ़नी ही पढ़नी है। जब आपने पहले 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो लास्ट के 20 डेज में एनसीईआरटी आप पढ़ ही लोगे। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। ये तभी तो मैं बोल रही हूँ, इफ़ यू आर एबल टू रिवाइज इन द लास्ट 20 days, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड यू डोंट इंटेंशनली रिवाइज इन द लास्ट 20 days, तो फिर आप खुद गड़बड़ कर रहे हो। आपको फैक्ट्स याद नहीं रहेंगे, आपको पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में लास्ट के 20 डेज में मैंने यूट्यूब पे फिजिकल के आई यूज टू वॉच 1 शॉट्स, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। और फिजिकल के लिए मेरे जो नोट्स होते थे मैं उनको भी कभी कभी रेफर कर लेती थी। तो फिजिकल का मेरा थोड़ा सा वेरी करता था। तो फॉर एग्जाम्पल विल टेक 1 एग्जाम्पल फ्रॉम दिस पतली सी बुक। दिस वॉज माई फेवरेट बुक, क्योंकि इसमें से एक तो चैप्टर्स कम थे और इसमें से मोस्टली चैप्टर्स कट गए थे। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल यू डिड दिस रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर करा, ठीक है। अब यहाँ से नहीं करा वो चैप्टर, यहाँ से वो चैप्टर नहीं करा। ये चैप्टर हमने करा हमारे नोट्स से, हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, पूरे प्रॉपर नोट्स हैं, पढ़ लिया वहाँ से। और उसको लगा लगभग 1 घंटा टाइप्स। उसके बाद में इसके जो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये जो पिंक बॉक्स में दिए रहते हैं, इनको कर लिया, ठीक है। इनको कर लिया, चलो जी ये हो गया। उसके बाद में हमने क्या उठाई, ये प्रीवियस ईयर की बुक उठाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बुक उठाई, इसमें से हमने जो भी मार्क कर रखे हैं क्वेश्चन, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिंगल टिक और डबल टिक बताया था, वो आपको फॉलो करना है, राइट। लेट मी जस्ट ओपन द रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर एंड यू नो आई विल शो यू। सी आई यूज टू स्टार माई क्वेश्चन, जो सॉल्व नहीं होते थे वो क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लिया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, राइट। फिर रिडॉक्स के क्वेश्चंस बहुत कम थे, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। सो ये या तो हम अपने आसपास जो हॉस्टल मेट्स होते थे, है ना, उनसे डिस्कस कर लेते थे एंड या फिर टीचर से पूछ लिया या फिर इंटरनेट से पूछ लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटरनेट पे होते हैं एंड दैट्स सिंपल। आपको लग रहा होगा बहुत टाइम लग रहा है, 1 घंटा रिवाइज करने में लगा, आधा घंटा उन इन टेक्स्ट क्वेश्चन में लगेगा जिनके सोल्यूशन इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हैं, और आधा 1 घंटा इनमें लगेगा। सारे नहीं सॉल्व करने हैं, सिर्फ मार्क्ड वाले सॉल्व करने हैं, ठीक है, सिर्फ मार्क्ड वाले सॉल्व करने हैं। सिमिलरली जैसे इसी बुक में से हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है,
इस बुक में से मार्क्ड क्वेश्चन करें जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं हुए थे। ऑर्गेनिक के लिए आप मतलब 2005 से पहले वाले क्वेश्चन ना करो तो अच्छा, क्योंकि एनसीईआरटी बदल गई थी तो वो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इरेलीवेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से कर लिया, 1 घंटा आपको वो करने में लगेगा बिकॉज यू आर नाउ नॉट लर्निंग इट, यू आर रिवाइजिंग इट, यू आर रिवाइजिंग इट, यू नॉट लर्निंग इट। ठीक है, और आधा घंटा या 45 मिनट्स आपको इसमें लगेंगे और आधा घंटा आपको उसमें लगेगा, तो लगभग 2 आवर्स 15 मिनट्स लग रहे हैं आपको हर चैप्टर में। और आपको केमिस्ट्री दिन में पढ़ लेनी है 4.5 आवर्स, बायो 3 आवर्स, केमिस्ट्री 4.5 आवर्स, फिजिक्स ऑल्सो 4.5 आवर्स, टोटल हो गए 12 आवर्स। इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना लास्ट के 20 दिन में, नीट का एग्ज़ाम है, मजाक थोड़ी है। केमिस्ट्री का अब तरीका समझ में आया बिल्कुल, बट अब आपको ये क्वेश्चन पहले सॉल्व होने चाहिए, मार्क्ड होने चाहिए, तभी आप रिवाइज कर पाओगे। इसलिए मैं ये वीडियो पहले बना रही हूँ ताकि आप ये चीज़ लास्ट के 20 डेज में फॉलो कर पाओ। ओके, और ये एनसीईआरटी पहले पढ़ी होनी चाहिए, लास्ट के 20 दिन में पढ़ोगे तो वो नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। फिर मत ही पढ़ो, इससे अच्छा जो कर रखा है वही कर लो, है ना। पहले पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें, तब जाके लास्ट के 20 डेज में होंगी। सो दिस गोज फॉर आर दिस केमिस्ट्री थिंग। ये चारों बुक्स आपको अच्छे से करनी है। फिजिकल के लिए कौन से चैप्टर्स, केमिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, कि बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारी बुक्स हैं इसकी, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। एंड नाउ कम्स द फिज़िक्स, है ना। तो फिज़िक्स के लिए मैं जब अपनी पार्ट मॉक टेस्ट की तैयारी करी थी, इस मामले में मैं थोड़ी लकी थी कि जो मेरी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ थी वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन थी कि हमारे टेस्ट बहुत इनफ टाइम होता था हमारे टेस्ट के बीच में। तो मैंने वो तब वैसे मैंने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, बट मुझे तब लास्ट के 20 डेज़ में मेरा पढ़ने का मन नहीं करा। तो मैंने ऑल्टरनेटिव सोचा कि मैंने वही ऑनलाइन 1 शॉट वीडियोस जो उठान सीरीज़ थी वही मैंने देखी थी। तो 40 चैप्टर्स थे एंड रोज के 2 देखे थे। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल नाउ अगेन दिस PYQ बुक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल वे पिकअप मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चलो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दिस इज द चैप्टर। अभी ये यू नो दिस बुक आई हैड नॉट इवन टच्ड इन 2023। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ हो गया, एकदम से मार्क्स आ गए, एकदम से पढ़ लिया, मजाक थोड़ी होता है। सो इट्स ओके अगर आपका इस साल उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल भी नहीं आएगा। यू हैव इनफ टाइम, आप कर सकते हो। मतलब ये जो नीट का पेपर होता है ना, ये आपका हार्ड वर्किंग टेंडेंसी को मेजर करता है। ये नहीं देखता आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना, नहीं, ये आपकी मेहनत देखता है। ठीक है, तो अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सबका टाइम होता है, सबका टाइम आएगा। ठीक है, तो अगर आप दिल से मेहनत करोगे और बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन, बी ऑनेस्ट टू एवरीवन, एंड तो कर लोगे चीज़ें। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की उठान सीरीज़ देखी, नोट्स नहीं बनाती थी बिकॉज अब क्यों नोट्स बनाने हैं, अब थोड़ी रिवाइज करना है बाद में, बस देख लिया, बस जो क्वेश्चन हुए थे 4 उनको सॉल्व कर लिया, बस देख लिया। मुझे पता है ये मैं दोबारा तो पढ़ नहीं होंगी, बस दिस इज़ माई लास्ट रिविजन विच आई एम डूइंग। और फिर इसमें से जो मार्क्ड क्वेश्चन थे वो कर लिए, जो नहीं हुए वो नेट से देख लिए। इसमें इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं होते, मतलब एनसीईआरटी मैंने फिजिक्स की नहीं करी थी आप, बट वो पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़ सकते हो फिजिक्स की एनसीईआरटी में से, वो भी न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना, पुरानी से मत पढ़ना। इस बार आपको पता है कितना प्रॉब्लम हो गया था, बट वो क्वेश्चन मेरा विद गॉड्स ग्रेस इट वॉज राइट, है ना। तो इसमें से मार्क्ड क्वेश्चंस कर लिए, जो क्वेश्चंस नहीं हुए वो अपने दोस्तों से पूछ लिया, अपने टीचर से पूछ लिया। यूट्यूब जिंदाबाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब पे सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, और फिजिक्स को आपको देना है 4.5 hours, सो आई विल गिव यू आइडियल थिंग। फॉर एग्जाम्पल यू वेकअप एट 8 in the morning, आज से लेकर 1 बजे तक डू योर फिजिक्स। मैंने 1:30 बजे तक भी कर लो चाहे, ठीक है, जबकि पढ़नी 4.5 hours है, बट आई हैव गिवन यू 5.5 hours। ठीक है, अब हम बैठेंगे कितने बजे, 2 बजे, किसको लेकर, केमिस्ट्री। 2 से 7 बजे तक अपनी केमिस्ट्री पकड़ो, 7:30 बजा लो चाहे। कितने घंटे दिए, 5.5 hours। पढ़ना कितने घंटे है, 4.5 hours। 1 घंटा बीच में चिल मार लो, शॉर्ट्स देख लो, रील्स देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बातें कर लो, कुछ भी कर लो, बाहर चले जाओ, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इतना सिंपल है ये। 7:30 बज गए, अब बजेंगे कितने, 8। आधे घंटे का ब्रेक प्रॉपर दे दिया कि जाओ डिनर कराओ, घूम लो, आधे घंटे का ब्रेक प्रॉपर दे दिया। 9 बजे तक का ब्रेक ले लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। 9 से लेकर 12 बजे तक बायो पढ़ो, एनसीईआरटी।
ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 12 बजे सो जाओ, सुबह 8 बजे उठो, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। करना आपको है, अगर नीट क्रैक करना है, जो करना होगा ना वो कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत टफ है तो फिर आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ईजी लगे। देखो ये एग्ज़ाम ना कोई इतना टफ नहीं होता जितना आसान मैं बता रही हूँ कि ऐसे कर लो वैसे कर लो वैसे कर लो, इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो रही है, लोनलीनेस हो रही है, बहुत प्रॉब्लम होती है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। घर से प्रेशर लगा रहा है, टीचर से प्रेशर लगा रहा है, खुद का प्रेशर लगा है, ड्रॉप हुए में तो और भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड, बट इन सब चीज़ों को साइड पे रख के अपने को करना पड़ेगा। ये भी लास्ट के 20 दिन नहीं है ना, अभी तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो ताकि आप लास्ट के 20 दिन में ये सब चीज़ें कर पाओ उसके लिए आपको प्रेपरेशन अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोना रॉक द नीट 2025 एंड हैव अ गुड डे, ओके। एंड ट्राई टू फॉलो दीज स्ट्रैटेजीज, इन स्ट्रैटेजीज़ को लास्ट पे आप फॉलो कर पाओ, उसके लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। एंड इट वुड बी लाइक रियली ग्रेट अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हो तो, ओके। सो अभी बस कर जाओ और स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखना। आई विश दिस वॉज द लास्ट वन बिकॉज आई हैड ट्राइड कि मैं आपको सारी बता दूँ, क्योंकि हर बंदे की जाके स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे ना तो इसमें उनका फ़ायदा है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।